Hello, dear students. This is paper 3, option Cultural Studies of MA1, semester 1. And today I'm going to cover unit 3, that is Culture and Civilization. Here we have two authors. One is John Story and other is Matthew Arnold. And in this video, I would cover Matthew Arnold only. So Matthew Arnold, who he was and what he's known for. Matthew Arnold is the poet, writer, composer who wrote Dover Beach. You all have studied that in your past course in general English. So he was a distinguished poet and a prose writer of Victorian era. That is the most important thing about him, and he has written diversely on so many topics. So the important thing here to cover is as Iago. Iago is one of the character of Shakespeare. As Iago said to himself, Arnold too is saying nothing. So जैसे आर्नल्ड ने अपने इयागो ने अपने लिए ये यूज किया है वैसे ही आर्नल्ड भी ऐसा ही है. क्या है उसमें? आर्नल्ड टू इज नथिंग इफ नॉट क्रिटिकल. सो आर्नल्ड इज एवरीथिंग इफ ही इज क्रिटिकल बिकॉज ही इज अ क्रिटिक. ही इज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स. तो वो सारा एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी राइटिंग्स में दिखाया है. एंड ही इज नथिंग इफ ही इज नॉट क्रिटिकल. सो ही हैज टू बी क्रिटिकल. Arnold's criticism of literature, society, politics, and religion all tend towards being a criticism of life. He himself defines criticism as the endeavor. ये एक effort है. Criticism क्या है? एक effort है. क्या करने के लिए? To see the object as in itself it really is. तो जो चीज जैसी है उसको वैसा ही देखने की जो एफर्ट है उसको क्रिटिसिज्म कहते हैं. और अगर आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं तो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है इवैल्यूएशन, जहां आप चीजों को इवैल्यूएट करोगे, टेक्स्ट को इवैल्यूएट करोगे. Arnold, who felt the fret and fever of the Victorian period, realized that he was breathing in a kind of spiritual vacuum. तो उनको ये आइडिया था. डॉवर बीच में भी सेम सा थीम उन्होंने दिया है कि स्पिरिचुअली जो सेंचुरी है, जो सिविलाइजेशन है, जो जनरेशन है जिसमें वो थे, दैट वाज बैरन. वो उसमें फेथ, वो पुरानी कोई अच्छी चीज नहीं रही. So he was keenly aware of the conflict between advancing materialism and retreating Christianity. Faith नहीं रहा. वो रोरिंग साउंड्स ऑफ पेबल जो है डॉवर बीच की वो दिखा रही है, लोगों में विश्वास नहीं रहा. तो क्रिश्चियनिटी रिट्रीट कर ली और मटीरियलिज्म एडवांस हो रहा है. सो यहाँ पे आई हैव टू स्किप बिकॉज अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. The Victorian age is generally known to us as an age of peace and prosperity, and above all of political stability under the reign of Queen Victoria. क्वीन एलिजाबेथ की तरह क्वीन विक्टोरिया भी काफी ज्यादा पॉपुलर और स्टेबिलिटी वाली रूलर रही हैं. बट बिहाइंड द इम्पोजिंग सिस्टम ऑफ ऑर्डर, आर्नोल्ड परसीव्ड सम एनार्किक और chaotic forces at work. तो देखने में तो पीस लग रही थी लेकिन कुछ chaotic forces पीछे वर्क पे थी. मतलब रिलीजन अपनी पकड़ छोड़ता जा रहा था. Anarchy, according to him, is essentially antonymous, मतलब opposite to culture. तो antagonist है, मतलब villain है anarchy. Anarchy का मतलब lawlessness, जब कोई कुछ रूल फॉलो नहीं करेगा. When everybody is bent upon doing as one likes, जब कोई रूल फॉलो नहीं करेगा वो वैसे ही काम करेगा जैसे उसको करने हैं, दैट इज कॉल्ड एनार्की. और कल्चर क्या है? जब ये होगा कि सब अपनी मर्जी से काम करेंगे तो कल्चर डेंजर में आएगा, वो खतरे में आ जाएगा. और कल्चर इज इन डेंजर अगर सारे अपनी मर्जी करने लग जाएं तब. सो व्हाट मेक्स कल्चर? तो कल्चर क्या है मैथ्यू आर्नल्ड के लिए? मैथ्यू आर्नल्ड के लिए कल्चर जो है, इट्स अ व्यू in which the love, let me underline that, a view in which the love of our neighbors, the impulses towards action, help and beneficence, the desire for removing human terror, clearing human confusion and diminishing human misery, the noble aspiration to leave the world to leave the world better and happier than we found it, motivates eminently. बेसिकली क्या है? कल्चर क्या है उनके अकॉर्डिंगली?
The noble aspiration, just this much will be sufficient. Noble aspiration to leave the world better and happier. तो वर्ल्ड जैसे आपको मिली है उससे ज्यादा हैप्पी और बेटर छोड़ना, दैट इज कल्चर. तो सिर्फ अच्छे अच्छे काम करने. और ये जो एज थी क्वीन विक्टोरिया वाली, ये इस एज में मटेरियल एफ्लुएंस बहुत था, मतलब बड़ा मटेरियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत साइंटिफिक एक्सपेंशन, सोशल अनरेस्ट भी आया इससे. मैकेनिकल प्रोग्रेस तो हो गई, लेकिन लोगों की जो वर्किंग कंडीशंस थी इतनी बुरी थी. वहां पे प्लेग्स वगैरह ऐसा ऐसा सिस्टम भी बहुत हुआ है, बीमारियां भी, लोगों का सोशल डिस्पैरिटीज बहुत आ गई, जो गरीब थे वो ज्यादा गरीब, अमीर ज्यादा अमीर. तो बड़ा सारा ऐसे सोसाइटी में चेंजेस भी बहुत आ रही थी. और ऐसे ही कल्चर क्या है? कल्चर इज दस अ सोशल पैशन फॉर डूइंग गुड. तो कल्चर क्या है इस हिसाब से जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं? कल्चर का मतलब है डूइंग गुड. एंड अनार्की इट्स इट निगेशन, उससे बिल्कुल उल्टा है. अच्छे काम करना अगर कल्चर है तो उससे उल्टा अनार्की है. Sweetness and Light is the first chapter of the book Culture and Anarchy. Sweetness and light is an English idiom that is used to describe insincere courtesy. तो insincere courtesy को दिखाने के लिए इस particular idiom को use किया गया है. Matthew Arnold picked this phrase from Jonathan Swift's work Battle of Books. तो Jonathan Swift से ये borrow किया गया है word. Sweetness and light here stands for the beauty and intelligence of an excellent culture. In his treatise, Arnold's central focus and argument are on curiosity. तो यहाँ light और sweetness और light में वो curiosity की बात करते हैं. It is defined as a liberal and intelligent eagerness about the things of mind or mental activities. So, according to him, नेटल प्लेस ऑफ क्यूरियोसिटी इज डिजायर. नेटल बेबी प्लेस, कहाँ से पैदा होना है, कहाँ से शुरू होना है. तो क्यूरियोसिटी कहाँ से आती है? डिजायर से. जब आप किसी चीज के लिए डिजायर करते हो, आपकी क्यूरियोसिटी बनती है. इट इज डिजायर दैट मेक्स समबडी परस्यू. और जब डिजायर होती है तो आप काम करते हो. और काम करना मतलब यू आर ऑन टू द पाथ टू एक्वायर दैट. तो ये जो क्यूरियोसिटी है ना, सच क्यूरियोसिटी, ये जो क्यूरियोसिटी की बात हम कर रहे हैं, the work of desire is to see things as they are. If it is pursued by an intelligent person with an impartial understanding of the mind, it becomes praiseworthy. अगर कोई इंटेलिजेंट बंदा कोई डिजायर, कोई इच्छा रख रहा है, मान लो अगर मेरे मन में ये इच्छा आ गई कि आई हैव टू ओपन अ स्कूल एंड आई हैव टू गिव फ्री एजुकेशन टू द अंडर प्रिविलेज्ड, it means I am, it this act is praiseworthy and I am promoting culture, good culture. So curiosity leads to culture. So beyond the man of culture is nonetheless but curiosity. अगर कोई man of culture है तो वो किस चीज से भरा पड़ा है? उसमें curiosity ही होगी जो culture की तरफ लेके जाती है. फिर यहाँ पे culture is described by Arnold in Sweetness and Light has to originate in the love of perfection. तो culture का मतलब जो ये यहाँ मैथ्यू आर्नल्ड दे रहे हैं, he is talking of culture as he says that it originates, has to originate, कहाँ मिलता है हमें ये? In love of perfection. Culture in the final analysis is the study of perfection. तो culture क्या है? According to Matthew Arnold, very important point to learn, culture is basically study of perfection. Oh, just wait. Yes. So the culture serves as the study and pursuit of perfection. The inspiration for man to a desire for perfection comes from religion. अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें कल्चर तक जाना है तो बीच में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. क्यूरियोसिटी कैसे आएगी? डिजायर से आएगी. सो देयर इज प्रॉपर सीक्वेंस दैट इज बीइंग फॉलोड. तो यहाँ पे बात हो रही है क्यूरियोसिटी की, राइट? क्यूरियोसिटी की, क्यूरियस नेचर, जितनी स्पेस है, ये कहाँ से आई? इसके नीचे है डिजायर, राइट?
तो अब डिजायर कहाँ से आएगी? अलग अलग ऐसे एक तार जुड़ती जा रही है यहाँ पे। कल्चर सर्व्स एज स्टडी एंड परसूट ऑफ परफेक्शन, इंस्पिरेशन फॉर मैन टू डिजायर फॉर परफेक्शन कम्स फ्रॉम रिलीजन। तो अगर सबसे आगे कल्चर है, यहाँ कल्चर है, कल्चर कैसे आएगा? क्यूरियोसिटी से आएगा। क्यूरियोसिटी के पीछे अगर हमारे पास डिजायर है, डिजायर के पीछे क्या है? रिलीजन आएगा। यहाँ रिलीजन आ गया, ठीक है। डिजायर के पीछे परफेक्शन, वो डिजायर किस चीज की डिजायर है? फॉर परफेक्शन। परफेक्शन हो, क्यूरियस हो चीजों को पाने के लिए, कल्चर आ गया। और इधर ये सारी चीजें अच्छी अच्छी कहाँ से आई? रिलीजन से। सो ही इज एडवोकेट ऑफ, प्रमोटर ऑफ रिलीजन। So Arnold calls religion को वो क्या कहते हैं? That voice of the deepest human experience. Then he defines the idea of culture in these words: it is in making endless, additional to itself, in the endless expansion of its powers, in endless growth in the wisdom and beauty. तो culture क्या है? Culture basically expansion है, endless inspection है, expansion किसका? Of wisdom and beauty. खूबसूरती का और विजडम का। बेटा जो भी चीज नोबल है, अगर आप अच्छे इंसान हो ना, चाहे आपकी शक्ल जितनी मर्जी भद्दी हो, आपकी शक्ल पे बहुत सारे निशान भी हो, अच्छाई जो है ना, अंदर वाली सच्चाई, उसका नूर ही अलग होगा आपके फेस पे। टू रीच दिस आइडियल कल्चर इज एन इंडिस्पेंसिबल एड, एंड दैट इज द वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ कल्चर। तो कल्चर क्या है? जो एंडलेस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें कल्चर चाहिए। कल्चर इज इंडिस्पेंसिबल एड। Culture thus is a growing and becoming and a general expansion towards perfection. तो religion क्या है? Sorry, ये क्या है? Culture क्या है? Perfection, pursuit of perfection है। यहाँ देखिए, the ultimate aim of culture is to enrich our inner content of the mind and spirit. तो इसने हमें अंदर से strong करना है। That is why culture has a purging effect. It prepares individuals to face the future with goodwill and faith. So he often uses. So Matthew Arnold has quoted this phrase number of times, and what he says, culture is the best which has been thought and said, comes from the preface to Culture and Anarchy. तो क्या exactly यहाँ पे words हैं वो जो use कर रहे हैं? He says the whole scope of the essay, ये preface में उन्होंने बताया है, the whole scope of the essay is to recommend culture as the great help out of our present difficulties. कि अगर present difficulties से निकलना है, the only thing that is going to help us out is the culture. So, according to his view advanced in the book, culture is the study of perfection. तो आगे ये बाकी का you all can read. So this is the social idea. The men of culture are great apostles. जो कल्चर वाले लोग हैं, दे आर, वो पुतले हैं किसके? इक्वलिटी के। दे विल ओनली टीच इक्वलिटी। और जो कल्चर है, कल्चर लुक्स बियॉन्ड मिशनरी। ये डार्क वाला, दे आर टेक्सचुअल एविडेंसेस, बोल्ड मटेरियल जितना है। सो कल्चर लुक्स बियॉन्ड मिशनरी। कल्चर मिशनरी से नहीं, मतलब आपके पास कितने रिचेस हैं वो कल्चर नहीं है, आपके पास कितनी मॉरल वैल्यूज हैं, कितना रिलीजन है, कितनी अच्छाई है, दैट्स रिलीजन। सो कल्चर हेट्स हेट्रेड, कल्चर हैज वन ग्रेट पैशन, और वो पैशन क्या है? द पैशन फॉर स्वीटनेस एंड लाइट। सो यहाँ एग्जाम्पल दी गई है कि ग्रेट एग्जीबिशन जो इंग्लैंड की हुई थी, वो इस हिसाब से अगर मैथ्यू आर्नल्ड के हिसाब से देखें, वो बेमायने थी। क्यों? क्योंकि इट वॉज अ परेड ऑफ इंग्लिश अकम्पलिशमेंट, राइट? बट बिकॉज ऑफ द मटीरियल प्रोग्रेस, इंग्लैंड थिंक्स दैट national greatness is due to them, but material prosperity is not greatness. That is what Matthew Arnold believes, and he faces and he tells the world. So he says, like, as a man, one should tend towards sweetness and light. This is Arnold's happy idea of the essential character of human perfection. And the character of man of culture is molded both by religion and poetry. Religion aims at the human nature, perfect on the moral side, that is religion.
Religion aims at moral perfection. The dominant idea of poetry is the idea of beauty. तो how religion and poetry they are related. Religion हमें moral value सिखाता है और poetry ने हमें basically परफेक्ट नेचर, ब्यूटी ये सब सिखाना है। तो जो मैन ऑफ कल्चर है ना, उसको मोल्ड करने वाली ये दोनों ही चीजें हैं, रिलीजन भी और पोइट्री भी, अपने अपने हिसाब से। सो द बेस्ट आर्ट एंड पोइट्री ऑफ द ग्रीक्स tend towards becoming one with the religion. So culture क्या करता है? Culture brings inward peace, internal peace, satisfaction मिलती है by suppressing and subduing our animality. हमारा जो जानवर वाला वो नेचर है ना, उसको दबा के कल्चर क्या सिखाता है? कल्चर टीचेस अ सिविलाइजेशन, राइट, कि हमें अच्छे इंसान बनना है, बेहतर बनना है। कल्चर या वेल कल्चर्ड हम कहते हैं, ही इज अ कल्चर्ड मैन, मतलब बहुत अच्छा है, उसको सारे सलीके कर्टसीज जो है वो आती हैं। रिलीजन कहते हैं, फिर क्या हो रहा है? कहते हैं रिलीजन एट टाइम्स फेल्स टू लीड अस टू परफेक्शन, दिस परफेक्शन। अदरवाइज रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है, बट एट टाइम्स दिस हैपेंस। कब? जब लोग अपना फेथ रिलीजन में खो देते हैं, तब ये सिचुएशन आती है। यहाँ पे फिर वो बात कर रहे हैं एग्जाम्पल देके ऑक्सफोर्ड की। वी इन ऑक्सफोर्ड ब्रॉट अप अमिड्स द ब्यूटी एंड स्वीटनेस ऑफ दैट ब्यूटिफुल प्लेस हैव नॉट फेल्ड टू सीज अपॉन वन ट्रुथ, द ट्रुथ दैट ब्यूटी एंड स्वीटनेस आर एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ अ कंप्लीट ह्यूमन परफेक्शन। तो यहाँ फिर से ही इज कमिंग डाउन टू स्वीटनेस एंड दिस sweetness and beauty only, sweetness and light, otherwise the true words are sweetness and light. तो फिर यहाँ पे एक रेफरेंस दी गई है लीडर्स की, जो लीडर्स हैं कंट्री के, ऑफ द कंट्री इन रिलीजन, इन सोशल एंड पॉलिटिकल स्फीयर में ग्रेजुअली बी कन्वर्टेड टू दिस कल्चर। तो उनको धीरे धीरे कल्चर की तरफ लाया जा सकता है। एंड व्हाट विल हैपन एज इनवर्ड स्पिरिचुअल कल्चर क्या है? अपहोल्डिंग दिस आइडियल ऑफ ह्यूमन परफेक्शन, दैट इज as inward spiritual activity having for its characters increased sweetness, increased light, increased life, increased empathy. So they are the apostles of democracy. They cultivated the best knowledge. They set an example in their lives. और यहाँ पे बात हो रही है कि जब ये सब हो रहा होगा, तब क्या होगा? ये जो न्यू पावर, दे the new force and the new power arising in England with its revolutionary principle will strike at the root of middle class Philistinism. तो मिडिल क्लास की जो रूट्स हैं उनके ऊपर डेफिनेटली रेवोल्यूशन जो है आएगा, बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगी। पीपल विल नो लॉन्गर रन आफ्टर एनार्की, दे विल एम्ब्रेस रिलीजन, दे विल एम्ब्रेस कल्चर, दे विल ट्राई टू बी परफेक्ट एंड एवरीथिंग विल बी ओके। So on the whole, it can be said On the whole, it can be said that Arnold is happy to insist on the waking up of his contemporary, wakening of his contemporaries to all spheres of creative activity in art, literature, and life. तो यहाँ पे Matthew Arnold is happy. क्यों happy? Because he's insisting on wakening अप ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज। वो अपने कंटेम्प्रेरीज को जगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि सारे सफियर्स में क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं, चाहे वो आर्ट है, लिटरेचर है, लाइफ है। तो ही इज मेकिंग एफर्ट्स, उनको जगा रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है कल्चर और लाइट या ब्यूटी या स्वीटनेस का होना। सोसाइटी मस्ट बी रिजुविनेटेड विद नोबल थॉट्स, और मानते हैं कि सोसाइटी को दोबारा से पुनर्जीवित करना होगा विद noble thoughts and sense of beauty and deeper significance to human life. तो beauty, perfect beauty जहाँ यहाँ पे सिर्फ वो अगर हम उसको करते हैं कि fair complexion और beautiful features, नहीं, वो नहीं। He is talking of beauty that radiates from within, अच्छाई की, moral values की। Arnold insists that the light of culture must guide this national reawakening. तो अगर लोगों को जगाना है स्वीटनेस और लाइट की तरफ, उनको बताना है स्वीटनेस और लाइट इंपॉर्टेंट है, जागरूकता लानी है, उनको रोशनी दिखानी है, तो वो कौन करे? ये कैसे हो? लाइट ऑफ कल्चर जो है मस्ट गाइड, कल्चर की रोशनी ही लोगों को गाइड करे असली रोशनी में। ओनली इट मस्ट बी रियल थॉट, और लोगों में क्या प्रिवेल कराना है, क्या उनमें उनके पास होना चाहिए,
only it must be रियल थॉट्स हो, कॉपी ना हो, एंड रियल ब्यूटी, उनके उनमें रियल ब्यूटी हो, रियल स्वीटनेस एंड रियल लाइट. That is what Arnold is praying for in chapter 1, sweetness and light. And that's it.